जब कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा दी जाती है तो उसमें स्पॉटिंग द एरर संबंधी जो प्रश्न होते हैं वे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि स्पॉटिंग द एरर का मतलब है कि ग्रामर का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंग्लिश ग्रामर में अपवादों की एक बड़ी श्रृंखला है। वैसे भी भाषाओं में प्रायः अपवाद होते हैं, इसलिए स्पॉटिंग द एरर से संबंधी प्रश्न परेशानी पैदा करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रायः भाषा या लैंग्वेज से संबंधित होता है, जिसका एक अपरिहार्य भाग सिंटैक्स या स्पॉटिंग द एरर्स भी होता है। वैसे भी स्पॉटिंग द एरर संबंधी प्रश्न एसएससी, बैंकिंग तथा अन्य बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इसमें हमने आज कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा में तैयारी हेतु हैं, परंतु ये प्रश्न प्रायः एसएससी या बैंकिंग टेस्ट से लिए गए हैं। अतः यद्यपि ये अवध सीरीज के प्रश्न हैं, परंतु इनका अध्ययन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयुक्त है। इसमें आज के इस श्रृंखला में 10 प्रश्नों को हल किया गया है। शेष प्रश्न आप कमेंट में हल कर सकते हैं या कोई समस्या हो तो उसे कमेंट में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। जिन प्रश्नों को आज हल नहीं किया गया है, निश्चित ही अगले वीडियो में उनका हल प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। चलते हैं और इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। नो एरर। सेकंड है, आवर फुटबॉल टीम comprises of 11 skilled players. No error. थर्ड है, knowledge and wisdom makes an individual truly complete and self-assured. No error. Fourth, one of the boys who always give the correct answer is Samuel. No error. 5. It is high time we renovate our old house. No error. 6. Headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school. No error. 7. The first inning of the match was very sensational. No error. 8. How long it takes to travel from Chennai to Trichy by train. 9. One should respect the religions of others as much as his. The religions of others
as much as his. As much as his own. 10. He finds fault at everything I do. 11. The kitchen needs painting badly and I must get it done. 12. A study is going underway to determine the exact concentration of lead in the water supply. 13. If I will play my best, I can win any day against anybody. 14. We have finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since then. 15. Several guests noticed Mr. Sharma falling back in his chair and gasping for breath. 16. The Russian ambassador's whereabouts is not known to anyone. 17. Many a man want to be rich quickly. 18. Make what you write and say more absorbed and engrossing. No error. 19. They came here in the evening and being making further arrangements. No error. 20. One must obey one's teachers. 21. She always fed her children before she fed her dog. 22. A bird in the tree is worth two in the bush. 23. Who I do think I met. 24. It is not advisable to take heavy luggage while on a journey. 25. He can be a basketball player since he is tall like a mule. 26. Just outside my house are a playground for school, boys and girls. 27. The other day, my sister told me that she will be moving out to her new apartment very soon. 28. Tony is giving me a lift. He is coming to call for me at 10. No errors. 29. Each of the students participating in the drawing competition have to bring his own materials. 30. Raj surprised everyone when he created an unbreakable record of 1.5 centuries. 31. Do not write him off, as I feel he still has the fire smoldering. तो ये ऐसे जो है 50+ क्वेश्चंस हैं, तो आ जाते हैं और इनके जो सही उत्तर हैं उनको देखते हैं। जैसे पहले वाला है कि many a man have come to India from Bangladesh। तो होता ये है कि जो many होता है, many ए के बाद सदैव सिंगुलर नाउन आता है। अतः जो है जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो जैसे many a student learns होगा, many a student learn नहीं होगा। तो वैसे ही इसमें दिया है many a man have, तो have नहीं होगा, many a man has। सेकंड देखिए आवर फुटबॉल टीम, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
टीम का प्रयोग नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की भांति प्लूरल में होता है। देखिए फुटबॉल टीम में 11 स्टूडेंट्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं। फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स हैं, यानी वो 11 प्लेयर्स का एक समूह है। इसके अलावा पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड माना जाता है। और जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कोई चीज़ मानी जाती है तो प्लूरल में होती है। तो अवर फुटबॉल टीम कंप्राइज ऑफ, टीम जो है प्लूरल है तो कंप्राइजेज नहीं होगा, कंप्राइज ऑफ, यानी अवर फुटबॉल टीम कंप्राइज ऑफ। नॉलेज एंड विजडम, ये तो बहुत आसान है। नॉलेज एंड विजडम दो हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि नॉलेज सिंगुलर है, विजडम सिंगुलर है, लेकिन नॉलेज एंड विजडम क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि राम रीड्स, मोहन रीड्स, राम एंड मोहन रीड। तो नॉलेज एंड विजडम मेक होगा, मेक्स नहीं होगा। जो पांचवा है इट इज़ हाई टाइम, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस आता है, पास्ट टेंस आता है। तो इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेट नहीं होगा, वी रेनोवेटेड होगा। देखिए RENOVATE, रेनोवेट माने होता है कि निर्माण करना, यानी जैसे कोई घर आदि है तो उसको क्या है, दोबारा उसको ठीक, उसको जो है थोड़ा सुधारना, ठीक करना, तो रेनोवेट, तो रेनोवेटेड होगा। इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। और ये रेनोवेट वाला एग्ज़ाम में बहुत आता है, देखें। इट इज़ हाई टाइम प्लस पास्ट टेंस, इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेटेड। जो छठा वाला है इसमें चौथा छूट गया है, तो अभी चौथा बाद में ले लेंगे। देखिए छठा देखें, हेड मास्टर हैड इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो ये इसका सेंस पास्ट टेंस में आता है, मतलब हेड मास्टर ने इंस्ट्रक्ट किया। तो हैज इंस्ट्रक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट नहीं होता है। तो हेड मास्टर इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। सातवां देखें, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच। तो इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, यद्यपि वो सिंगुलर होता है। तो द फर्स्ट इनिंग्स INNINGS ऑफ द मैच वाज, तो वाज सही है क्योंकि इनिंग्स न्यूज की तरह सिंगुलर होता है। तो देखें छठा है, प्रेजेंट परफेक्ट डज नॉट गिव द सेंस ऑफ पास्ट। तो हेड मास्टर इंस्ट्रक्टेड, द हेड मास्टर इंस्ट्रक्टेड, दी लगेगा। सातवें में है व्याख्या में, रेन न्यू स्टाइल के अनुसार फर्नीचर, हेयर, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स INNINGS का प्रयोग एक वचन सिंगुलर में होता है। इनिंग शब्द अशुद्ध है, इनिंग्स होता है, तो सही क्या होगा, इनिंग्स होगा। जो चौथा छूट गया था उसे देख लें, वन ऑफ द बॉयज। देखिए वन ऑफ के बाद तो हमेशा प्लूरल आता है, और लेकिन वन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट, ये होगा। देखिए वन ऑफ प्लस प्लूरल प्लस सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स, हु ऑलवेज गिव्स, गिव्स इसलिए होगा क्योंकि वर्ब वन के अनुसार आएगा। एक देखें, हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, बाई ट्रेन है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का फॉर्म होगा हाउ लॉन्ग। चूंकि टेक्स है तो प्रेजेंट टेंस है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक।
9 देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज। तो देखिए वन का अपना वंश होता है, ONE'(S). तो वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज वंस। तो 8 का आप देख लो, 8 जो है ये हाउ लॉन्ग, फिर डू डज यानी हाउ लॉन्ग डज इट टेक। 9 जैसे आई का अपना माई, सी का अपना हर, वैसे वन का अपना वंश होता है, ONE'(S). 10 में आप देखिए ये प्रेपोजिशन संबंधी है और फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग या इन एवरीथिंग होता है। फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग या इन एवरीथिंग। ही फाइंड्स फॉल्ट, तो ऐट नहीं होगा, ही फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीथिंग आई डू या ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग आई डू। देखिए एवरीथिंग दैट आई डू सेंस है, ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग दैट आई डू या विच आई डू। तो विच और दैट को लोप कर देते हैं, तो ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग आई डू। 11 द किचन नीड, तो किचन है तो नीड्स होगा, किचन नीड्स, सीधा साधा है, जो किचन सिंगुलर है तो नीड की जगह पर नीड्स होगा। 12 अ स्टडी इज गोइंग अंडर वे, तो देखिए अ स्टडी इज अंडर वे, अब गोइंग यहाँ पर फालतू है, अ स्टडी इज अंडर वे यानी एक अध्ययन किया जा रहा है। तो हिंदी में जा रहा है तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन गोइंग कर देते हैं, इंडियनिज्म है और गोइंग यहाँ पर सुपरफ्लुअस है। 13 इफ़ आई विल प्ले माई बेस्ट आई कैन विन द एनी डे, तो कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि वह वहाँ जाता है तो वह टॉप करेगा, इफ़ ही गोज देयर ही विल टॉप या ही सेड ही विल टॉप देयर। तो पहले में प्रेजेंट आता है, दूसरे में फ्यूचर आता है, या ऐसे ही दूसरा क्लास जो है डिफरेंट होता है। तो इफ़ आई प्ले माई बेस्ट, इफ़ आई प्ले माई बेस्ट। 14 है वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो। देखिए अगो जो होता है वो पास्ट टेंस में आता है, अगो पास्ट टेंस में आता है, तो वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो। अब सामान्यतः एक ही गलती होती है, अब यदि प्रिंटिंग मिस्टेक्स हों या दूसरे मिस्टेक्स हों तो हमें जब एक गलती और वो पक्की गलती मिल जाती है तो पूरा नहीं देख रहे हैं। 15 लास्ट है सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तो फॉलिंग बैक इन हिज चेयर ये सही है, एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ ये भी सही है, तो इसमें नो इरर है। 15 में नो इरर है क्योंकि सेंटेंस में कोई गलती नहीं दिख रही है। तो 10 देखिए ही फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीथिंग इन एवरीथिंग। 11 द किचन नीड्स। 12 इज गोइंग अंडर वे, तो यहाँ गोइंग क्या है, फालतू है। 13 कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के बाद प्रेजेंट टेंस होता है, इफ आई प्ले माई बेस्ट। 14 अगो इज यूज्ड इन पास्ट, तो वी फिनिश्ड आवर वर्क। और 15 में कोई गलती नहीं है। तो इसको जो है अपने साथ के जो दूसरे बच्चे हैं उनको शेयर करिए और डिस्कस करिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो बाकी हैं उनके भी सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जाएंगे। थैंक यू।